हेलो दोस्तों, तो इसमें हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोनॉमर्स UIBT डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ हॉल्ट अल्ट्रावायलेट स्टार्स इन मिल्की वे। तो the ultraviolet astronomer satellite इंडिया फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस सैटेलाइट है जो astronomers have successfully distinguished ultraviolet bright stars cluster from relative cold red gains and other main sequence stars. 34 ultraviolet bright stars were discovered using UVIT. From these imaging, research team also derived the properties of the stars such as brightness, temperature and radius of the derived properties. Stars are placed in the Hazelden-Russell diagrams. So the graph shows the relationship between the absolute size, brightness and stars. Their effective temperature was created 1910 by the एंजर हार्ट्स स्प्रिंग ऑफ हेनरी नॉरिस रूसल्स के द्वारा। तो अल्ट्रावायलेट ब्राइट स्टार आर ब्राइट देन द हॉरिजेंटल ब्रांच, ब्यूलर देन द रेड गेंट ब्रांचेज। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स द कोर ऑफ डिस्कवरी स्टार्स ऑलमोस्ट एक्सपोज एज द मेक्स देम वेरी हॉट. They evolved from the solar phase called horizontal branching and stars no cell, and these stars like the sun. And later stage of evolution's addition, astronomers use Gaia and space telecommunications आइडेंटिफाई स्टार्स. अल्ट्रावायलेट रेज जो कि है इमेजिंग टेलीस्कोप है. तो अल्ट्रावायलेट रेज की बात करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज इमेजनरी telescope 3R1 imaginary technology. It can observe near ultraviolet visual for ultraviolet wavelength. UBIT has two telescopes. One works in the visual light range, एक तो विजुअल लाइट रेंज में जो कि 320 नैनोमीटर्स हैं, 550 नैनोमीटर्स. अदर वर्क्स इन द नियर अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ which 200 to 300 nanometers. UBIT 3 times better than the NASA Galaxy and is a galaxy evolution explorer. This is a ultraviolet space telescope launched in 2003 and commissioned 2013. To date, UBIT made 116 observation of 800 unique source celestial body. It is explored several star collection, mapped large satellite galaxy and near the Milky Way called Magellanic Cloud. दोस्तों तो सॉरी. So to date UBIT has made 1166 observation of 800 unique source and celestial body. It has explored several star collection and mapping large small satellite galaxy near the Milky Way. So called is a magnetic cloud. So why it is called is a Magellanic cloud? So you can say that to date of UBIT had made 160 observation of unique source of celestial body. It has explored several star cluster and mapped large small satellite galaxy near the Milky Way, जिसको हम कहते हैं Magellanic cloud. तो astronomer was launched in 2015. It was the first multi-wavelength space observatory in India. Its mission to observe the universe in ultraviolet visual lights, low energy and high energy X-ray. This mission make to ISRO an exclusive clubs countries and currently head observation. They are United States, जापान and यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑफ रसिया. अब बात करते हैं आगे. हम ऑफ यूनिवर्स डिटेक्टेड बाय नैनोग्रेव. हम ऑफ यूनिवर्स जो कि डिटेक्टर किसके द्वारा किया गया, नैनोग्रेव्स के द्वारा डिटेक्ट किया गया. तो द हम ऑफ द यूनिवर्स कम्स फ्रॉम द डेड स्टार्स कॉल्ड pulsars. These stars are basically neutron stars. They are oriented in such a way they emit radio waves from their poles as they rotate. The first times of hum has been heard from the pulsar collision. Early signs have been observed buzzing sounds. They come from the merger of black holes, and LIGO observation had discovered hum of black hole mergers. LIGO एक ग्रेविटेशनल वेव है जो कि लेजर इंफेरिंग इंस्ट्रूमेंट है. द डिस्कवरी ऑफ हमिंग साउंड pulsar was will be important step of members. Pulsar timing array
black holes collide, similar buzzing sound produced, and sound is called black holes hum, and it is year of the average more than 1 lakh ब्लैक होल्स मर्ज इन यूनिवर्स, सबसे ज़्यादा इतने हैं। तो नैनोग्रेव इज अ नॉर्थ अमेरिकन ग्रेविटेशनल वेव नैनो हर्ट्स ऑब्जर्वेटरी है, जो कि मेन पर्पज जो है टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने का काम करता है। तो नैनोग्रेव के मतलब समझ चुके हैं आप। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द पार्क्स पल्सर्स एंड टाइमिंग एरे, इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग एरे वाज यूरोपियन पल्सर टाइमिंग है। तो पल्सर टाइमिंग एरे क्या होता है, तो एक प्रोग्राम होता है जो रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ मिली सेकेंड पल्सर एरे विथ रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस। पल्सर टाइमिंग एरे इट इज़ अ प्रोग्राम फॉर रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ मिली सेकेंड्स। Pulsar array with regular distribution, a millisecond pulsar is pulsar whose rotation period is less than about 10 millions millisecond. A millisecond pulsar is whose rotation speed is less than 10 millisecond. India Pulsar Timing Array, it is project of National Radio Astrophysics Center of the Tata Institute Basic Research and aim to detect nanohertz gravitation of the प्रिस्क्राइज टाइमिंग। सो बात करते हैं राइज इन त्रिपुरा कल्चर। अब भाई साहब देखते हैं कि त्रिपुरा कल्चर में क्या राइजिंग हो रही हैं। तो त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर बिप्लव कुमार जो कि डेव रोर ऋषा एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ इश्यूज स्टाइल स्टेटमेंट ऋषा एंड त्रिपुरा गवर्नमेंट विल प्रमोट ऋषा ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो ऋषा इज अ त्रिपुरा ट्रेडिशन costumes, both men and women Tripura wear risha. There are two parts of the upper body of the ladies clothing, namely risha and rikutu. Risha covers chest and rikutu covers the entire upper part. Women's clothing and covers lower half of the body is called rigwani or rignai. Each clan of Tripura has rignai style and design. Tripura clan determined by the rignai. So the men in Tripura wear head scraps and can also tie their waist in dhuti. When men put risha in empower and shows person's identity, also used to silencer of the winter. तो risha also used hold babies in Tripura cluster. risha ceremony की बात करते हैं तो adolescent ceremony Tripura girls on this stage, this first time girls aged 12 to 14 wear dressed cause clothes. The history of Tripuri clothing originated before the region. King Manik and ancient times of intellectual women in community was judged based on weaving risha regional designs. So द्वारकीप जो कि महाराज त्रिलिकुचर invented 250 रिग्नाई रिशा डिजाइन 250 वाइफ्स। सोचो, तो कम्युनिटी वाज जज बेस्ड ऑन द वीविंग रिशा रिग्नाई डिजाइन जो कि हमने पढ़ा। डॉफ किंग्स जो कि महाराज त्रिकोणसा इन्वेंटेड 250 रिग्नाई एंड रिशा डिजाइनेटेड 250 वाइफ्स। तो एट द टाइम पास्ट मोस्ट ऑफ दिस डिजाइन वेयर लॉस्ट। देयर आज द त्रिपुरा गवर्नमेंट ट्राइड टू प्रमोट रिशा त्रिपुराज अदर ट्रेडिशन क्लॉथिंग। इन्होंने जो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इन्होंने क्या किया, ट्राई टू प्रमोट। सो द कोरब्रोक डे इज़ अ सेलिब्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द कोरब्रोक लैंग्वेज। तो ये पूछा जा सकता है कि कब सेलिब्रेट होता है, जो कि 19 जनवरी को। इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा, एक त्रिपुरा का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो जनवरी 19 वाज अ चूजन एज द इवेंट ऑफ सेलिब्रेट कोरब्रोक डे बिकॉज इज अ लैंग्वेज ऑफ रिकॉग्नाइज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन 1779। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा हम लोग को पॉइंट अगर आप नोटेट करना चाहते हैं तो नोटेट कर लेना दोस्तों। इसी से पढ़ना चाहते हैं तो आप बार बार इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज पूछा जा सकता है और हमारे टेस्ट में भी शायद ये क्वेश्चन आए। तो अब बात करते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल्स ऑफ द साहेल एंड सहारा। तो ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ द साहेल एंड सहारा, तो एट वन प्लानट बायोडाइवर्सिटी समिट द ग्रेट साहेल ग्रीन वॉल्स ऑफ सहारा डेजर्ट इनिशिएटिव रिसीव इतना बिलियन फंडिंग एंड फंड वॉल बिकॉज ऑफ द create green jobs and protect biodiversity among the financial institutions. $5 billion and African Development Bank pledged
$25 एंड फ्रेंच गवर्नमेंट ब्लैक्ड $14 बिलियन। तो हाईलाइट की बात करें तो ग्रीन वॉल इनिशिएटिव एम्स टू चेंज द लाइव्स ऑफ 100 मिलियन अफ्रीकन्स बाय प्लांटिंग ट्री एंड 15 किलोमीटर वाइड्स। तो ग्रेट ग्रीन वॉल्स इनिशिएटिव अफ्रीकन जो लीडर्स इनिशिएटिव बाय अफ्रीकन यूनियन 2007 एंड कम्बर्ट डिस्क्राइबेशन ऑफ डिग्रेडेशन। द गोल ऑफ प्रोजेक्ट जो कि है कि 100 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेड लैंड बाय 2030। फ्रॉम 2007 to 2019 फॉर द ग्रेट वॉल ग्रीन वॉल इनिशिएटिव हैज रिस्टोर्ड ओनली 4 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड। द प्लान एम टू स्टोर 250 मिलियन टन्स कार्बन एंड क्रिएट 10 मिलियन ग्रीन जॉब्स। इतना सारा है। सपोर्ट अफ्रीकन कम्युनिटीज प्लांटिंग फर्टाइल लैंड, इंक्रीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यंगेस्ट पॉपुलेशन एंड प्रोजेक्ट विल हेल्प टू क्रिएट क्लाइमेट area and temperature rise faster and rest of the planet. So Great Wall Green Wall Initiative will contribute 15 to 17 UN Sustainable Development Goal. The main goal of United for the Great Wall Green Wall Initiative was restored 4 million hectares of land. The plan aimed to 250 tons and 10 million green jobs. तो द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट 15 to 17 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और जो मेन गोल है यूनाइटेड नेशन एंड डिजर्टिफिकेशन ऑफ द अचीव न्यूट्रलाइजेशन बाय 2020। देयरफॉर ग्रीन वॉल्स इज इनिशिएटिव विल हेल्प टू अचीव दिस गोल। सो लॉन्ग ओप्स प्रोजेक्ट बिटवीन यूके और जापान, अब ये भी ज़रा हम देख लेते हैं। तो लॉन्ग ओप्स जो प्रोजेक्ट है बिटवीन यूके और जापान के बीच हो रहा है। ऑपरेशन जापानीज ब्रिटिश साइंटिस्ट एंड डेवलप न्यू सेफ्टी टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी सच एज फुकुशिमा एंड वेयर सेवरली डैमेज ऑफ द सुनामी एंड अर्थक्वेक। इसके परिपथ में मेन जो प्रोजेक्ट चल रहा है हो रहा है। तो प्रोजेक्ट विल यूज टू रिमोट रोबोटिक आर्म्स, सो इट इज कॉल्ड द लॉन्ग ओप्स प्रोजेक्ट, इसलिए लॉन्ग प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट विल रिड्यूस रिस्क ऑफ ह्यूमन हेल्थ and accelerate the decommissioning of non-operation nuclear reactor. So implementation of cost of the long project is 12 million euros, मतलब 1.2 billion rupees. It is a rapid decommission of the nuclear facility. In addition, dismantling of the nuclear fission field project will also focus on the partial automation and nucleus fusion power. The project also help to improve and dismantle nuclear fusion facility such as European Union Circle, United European Ring nuclear fusion experiment located at the Culham Fusion Energy Center in United Kingdom. This is a first reactor produce 50 to 50 mixed fuel and deuterium was closed 2009 and concept used to ITER project के द्वारा। तो ITER International Thermonuclear Experiment reactor, India is also part of ITER experiment reactor, international experiment reactor, China, Russia, Japan, Europe, United States and South Korea. Digital twin technology part of the long ops project will analyze data at the decommission site of project operation between 1950 and 2000 there were more than 21 serious incident radioactive release of located in United Kingdom. In the former of nuclear power plant August 2020 activities site include nuclear reprocessing nuclear to decomposing nuclear waste storage in 2011 Fukushima जो डैचनी न्यूक्लियर रिएक्टर है 2001। यहाँ से थोड़ा देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से डिकम्पोजिशन इज 2001 फ्यूकुशिमा डाल्चिनी न्यूक्लियर रिएक्टर सेवरली डैमेज 2011 अर्थक्वेक एंड सुनामी। द इंसिडेंट डिस्प्लेस्ड मोर देन इतने पीपल एंड एडिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स सराउंडिंग एरिया सीरियसली पोल्यूटेड। तो हमने लॉन्ग ओप्स प्रोजेक्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ माइंस जियोलॉजिकल साइंस
tripartite agreement, Rajasthan government is responsible for the feasible study of potash solution mining in Rajasthan. तो स्टडी ऑफ पोटाश सॉल्यूशन माइनिंग राजस्थान, तो नागपुर, गंगानगर बेसिन, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, ह्यूज रिसोर्स 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पोटाश हेटाइल है. तो स्टार्टिफाइड साल्ट फॉर्मेशन ऑफ द कैन बी स्ट्रेटेजिकली यूज ऑफ अंडरग्राउंड एंड ऑयल स्टोरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाइड्रोजन, अमोनिया, हीलियम गैस स्टोरेज, कंप्रेस्ड गैस, न्यूक्लियर वेस्ट. तो पोटाश सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द बेडेड resource can be a storage responsibility and compared gas nuclear waste. Potash sodium chloride of the bedded salt widely used in fertile industry and chemical industry respectively. Pave the way of the country's first solution mining project, जो कि हुआ क्रिएट जॉब के लिए. अब बात करते हैं स्मार्ट एंटी वीपन बाय द DRDO. तो DRDO सक्सेसफुली कैरोज कैप्चर एंड द रिलीज ट्रायल टू इंडिजीनियस डेवलपमेंट स्मार्ट एयर सा एंड हॉक हिंदुस्तानी लिमिटेड ऑन द कोस्ट ऑफ ओडिशा. द स्मार्ट वीपन हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम हॉक MK 132 ऑफ HAL. सो फॉर दिस 9 सक्सेसफुल मिशन सा कंडक्टेड बाय DRDO. मतलब DRDO के लिए 19 सक्सेस हुए. दिस इज 125 स्मार्ट वीपन्स can engage enemy aircraft asset and ground such as radars, bunkers, taxi tracks and runways. So range of 100 km compared to similar weapon system of. तो smart weapon has been successfully tested from India Hawk MK 132. So far this is 9 successful mission of SA एंड कंडक्टेड DRDO के द्वारा हुआ था. तो इंडिजीनियस डिजाइनेटेड एंड डेवलप बाय DRDO. दिस इज 125 kg स्मार्ट वीपन्स एंड इंगेज इनेमी टू एयरफील्ड एसेट्स एंड ग्राउंड सच एज राडार, बंकर्स एंड टैक्सी ट्रैक्स एंड द रनवेज. सो 100 किलोमीटर्स कंपेयर टू द सिमिलर वीपन सिस्टम ऑफ द सेम क्लास एज हाई प्रिसीजन गाइडेड बम इन लाइटर इन वेट. सो बात करते हैं 2 न्यू रेयर जीनस एंड हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया. द ओक्रिया जीनियस फाउंड इन केरला एंड तमिलनाडु इंक्रीज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ रेयर जीनस. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सबसे पहले देखते हैं यहाँ द नेट आंट स्पीसीज डिस्कवर्ड फ्रॉम केरला. एक नया आंट स्पीसीज डिस्कवर्ड किया. तो 2 न्यू आंट जीनियस हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया. द ओसेरियोजेनेसिस ऑफ फाउंड इन केरला, तमिलनाडु इंक्रीज इन डाइवर्सिटी ऑफ रेयर जीनस. So according to the number of ancient segment there are different from the other of same genes. और so the unhundred was discovered in Periyar Tiger Reserve, Kerala, named Oceano Josil, and an outstanding evolution of biologist from the Jawaharlal Nehru Center of Advanced Scientific Research, जो कि किसने किया? JNCASR ने. तो एंटीजीनस ओशियन क्या है? तो दिस इज कंट्री 14 स्पीसीज होते हैं जो कि जीनस इन व्हिच 8 हैव 9 सेगमेंट एंटीनी एंड 5 have 11 segment antennae. Recently 8 segments on them was discovered in Periyar Tiger Reserve, Kerala is name of the Josila after the outstanding evolution and Jawaharlal Nehru Center Advanced Scientific Research. सो एंड जेनेसिस ओशियन जो है आर करंटली 14 स्पीसीज हैं और 8 एंड 9 सेगमेंट इन 5 to 11 सेगमेंट्स हैं. तो इंडिया सो फार द जीनियस इज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पीसीज रिप्रेजेंटिंग इन 9-11 सेगमेंट ऑफ एंटीनाई. सो एक्वा रिजुवनेशन प्लांट्स बाय द CSIR के द्वारा हुआ. तो इसकी बात करते हैं तो CEMRI लॉन्च एक्वा रिजुवनेशन प्लांट्स तो कि प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का एक बेस्ट तरीका बताया. तो CSI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दुर्गापुर है लॉन्च द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल इट कैन बी प्यूरीफाई इरीगेशन फार्मिंग के द्वारा मतलब के लिए इन्होंने प्यूरीफाई करने का वो किया. एक्वा रिजुवनेशन प्लांट्स जो है एंड इंटीग्रल वेस्ट वाटर रिजुवनेशन मॉडल है जो कि 6 लेवल प्यूरिफिकेशन characterized which can comprehensively treat wastewater according to various purification
पैरामीटर के हिसाब से कहें तो अप्रॉक्सीमेटली 2400,000 लीटर ऑफ वाटर कैन बी rejuvenated using ARP will be enough to meet nearly 4 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। सो बात करते हैं तो यूज ऑफ फिल्टर मीडिया स्पेशली डेवलपमेंट ट्रीटमेंट एंड इंडियन सीवेज वाटर पैरामीटर कैन बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल चेंज। द फिल्टर media can be also obtained locally to ensure there are no pressure in supply chain and mass production of ARP. Now the treated water used to irrigation can even use drinking and or little time of the setting. This system of the dual benefit, इस सिस्टम का हमें dual benefit मिलने वाला because when treated water is used to irrigation purpose and resulted filter कैन आल्सो डू मेन्योर फर्टाइल। दोनों में देखो कि हम लोग सिंचाई भी कर सकते हैं और मेन्योर फर्टाइल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो द बायोचर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राई लीव्स फॉलिंग इन द ड्राई लीव्स प्रेशर ऑफ द सप्लाई चेन ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ ARP नाउ जो ड्रिंकिंग and very little time of setting. Now treated water used in irrigation can even used for drinking and there be little of the setting, मतलब इन तीनों के लिए। This system is dual benefit because treated water used to irrigation purpose and resulting filter slugs also used to manure fertile के लिए। तो बायोचर प्रिपेयर्ड जो कि ड्राई लीव्स फॉलिंग इन द ऑटम सीजन आल्सो यूज टू सॉइल मिक्सिंग। ये काम क्या होता है, बायोचर जो होता है क्या होता है, जो हमारी लीव्स गिर जाती हैं ऑटम सीजन में तो इसमें सॉइल में मिक्स होता है और बिकॉज रिड्यूस द वाटर रिक्वायर बाय द इरिगेशन एंड सेविंग वैल्यूएबल वाटर। मतलब जब जो पत्तियां हैं गिर जाती हैं तो क्या करती हैं, वह मतलब गिर के मैन्योर बना लेती है और मैन्योर जब वो बन जाते हैं तो जो वाटर एक्सोसिएशन है इसको कम कर देते हैं, मतलब कि कम वाटर में भी अच्छी फसल ग्रो हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं PLI स्कीम प्रमोशन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। सो बात करते हैं अप्रूव ऑब्टेन अंडर द PLI स्कीम फॉर द प्रमोशन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर की क्रिटिकल स्टार्टिंग मटेरियल ड्रग्स इंटरमीडिएट इन API। दो PLI स्कीम जो प्रोवाइड प्रोडक्शन रिलेटेड टू इंसेंटिव बूस्ट and investments such as mobile phones and manufacturing specific electronics component formulas, food processing, solar photovoltaic manufacturers and medical equipment and other field. The pharmaceutical field are department of pharmaceutical launched by the PLI scheme aim to achieve self-sufficient and reduce dependence of the critical bulk drug. So as a mobile phone manufacturing species, electronic component pharmaceuticals, food processing, photovoltaic manufacturing. In the pharmaceutical field, department of the pharmaceutical launched by the PLI scheme द्वारा लॉन्च किया गया था to aim achieve to self sufficient and reduce dependence of critical bulk drugs. सो बात करते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट बाय GOI। तो एयर क्वालिटी कमीशन कोऑपरेट्स विद टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्डिनरी इन अक्टूबर 2020 में किया गया था। तो नेमली कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नेशनल कैपिटल रीजन एडजॉइनिंग एरिया है जो कि 2020 में हुआ था। तो कमीशन वाज इनविसेस्ड सुपर कमीशन ऑफ द इंक्लूड ऑलमोस्ट ओवरला एजेंसी एंड रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन एरिया जो कि मेनली दिल्ली NCR में इसका हेड ऑफिस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड दिस परमानेंट बॉडी फॉर रीजनल इफेक्टिव रिप्लेसमेंट इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड दिस परमानेंट so body is region of effectively replaced environment and pollution prevention. So CSQM has the power to formulate emission standards, impose fine up to 1 crore, send offence jail and headed by the Former Secretary of India. The ex officio members include Chief Secretary and dealing with the subject environments and state Delhi, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो बात करते हैं रैपिड असेसमेंट सिस्टम ऑफ फीडबैक प्रोसेस। तो गवर्नमेंट यूजेस मीटी रैपिड असेसमेंट सिस्टम जो कि फीडबैक है। दोस्तों इसको हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं जो कि फाइनल वीडियो होगी 21 से 25 के जनवरी 2021 के करंट अफेयर का।
सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।